تعلیم کے میدان سے ٹوبہ کی عوام کے لیے بڑی خبر، ضلع یونیورسٹی سب کیمپس ٹوبہ کو یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ملاقات میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے تمام فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی ٹوبہ میں یونیورسٹی کے قیام کی محنت رنگ لے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے ٹوبہ میں یونیورسٹی کے قیام کی درخواست کی، جس پر وزیر اعظم نے زرعی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے سب کیمپس کو ٹوبہ یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی، جبکہ پنجاب حکومت کو یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں اس وقت 20 کے قریب ڈگری پروگرامز جاری ہیں، جبکہ یونیورسٹی کے قیام سے 100 کے قریب ڈگری پروگرامز شروع ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ٹوبہ کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ یونیورسٹی کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ تعلیم کے میدان سے اچھی خبر، شورکوٹ میں طالبات کے لیے بنایا گیا نیا پرائمری اسکول، جبکہ 18 ہزاری گرلز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ مل گیا۔ حکومت پنجاب نے محکمہ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 5 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے۔ جنگ میں تعلیم کے میدان سے اچھی خبر ہے کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت سے نئے اسکول بنیں گے۔ نئے منصوبے میں تحصیل شورکوٹ کی بستی رشید آباد میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول بنے گا۔ تحصیل 18 ہزاری کے قصبے روڈ سلطان کے گرلز ہائی اسکول کو ہائی سیکنڈری اسکول بنا دیا گیا۔ اسکیم کے تحت ایجوکیشن کمپلیکس میں کانفرنس اور میٹنگ روم بنایا جائے گا۔ یونین کونسل نمبر 1 جنگ کے گرلز اور بوائز اسکول میں 4 دیواری اور واش روم کی سہولت فراہم ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کا کہنا ہے کہ منظور شدہ فنڈ سے اپ گریڈ کیے اسکولوں میں نئے کمرہ جماعت بنیں گے۔ حکومت پنجاب نے تمام اسکیموں کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری بھی کر دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دسمبر تک تمام فنڈز کو استعمال کر کے آئندہ بجٹ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ فیصل آباد میں آٹے کے نئے بحران کے خدشات، رجسٹرڈ چکیوں کو دیا جانے والا سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ محکمہ خوراک یومیہ 500 کلو گندم گلی محلے میں لگی چکیوں کو فراہم کر رہا تھا۔ فیصل آباد چکی ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتیں پھر سے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ خوراک نے آٹا چکیوں کو گندم کی فراہمی بند کر دی۔ مہنگی گندم خرید کر چکی مالکان مہنگے داموں آٹا فروخت کریں گے۔ ہمیں 5 بیگ پر ڈے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ میں پاس کیا کوٹا ڈیلی بیسس پہ ریلیز ہوتا تھا، ہم اس کو گودام سے اٹھا کے سرکاری ریٹ پہ جو ہمارا ان سے طے ہوا ہے 62 روپے مارکیٹ میں اس کی سپلائی کرتے تھے۔ ہم کل صبح جب دفتر گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا کوٹا ADCR خالد گجر اور DFC کی ساز باز سے بند کر دیا ہے، جس سے آٹے کا ریٹ اسی دن مہنگا ہو گیا۔ گندم نہ ملنے سے چکی کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگا ہے۔ چکی مالکان نے ضلع کونسل چوک میں علامتی احتجاج کیا کہ مالکان نے الزام عائد کیا کہ ملز مالکان کو نوازا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں 10 تھیلے بھی نہیں دیے جا رہے۔ محکمہ خوراک انتظامیہ کے مطابق چکی مالکان سستی گندم لے کر مہنگا آٹا دیتے ہیں، جس کے باعث گندم کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد وکاس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج چنیوٹ میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار PP 95 سید اسد بخاری اور PDM جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے۔ PDM کی کال پر مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ چنیوٹ میں بھی لگی MPA مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار PP 95 سید اسد بخاری، یوتھ ونگ، PDM جماعتوں کے کارکنان و قائدین نے احتجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ بینرز اور پینافلیکس اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ غریب تو کیا متوسط طبقہ کی پہنچ سے 1-2 ٹائم کی روٹی مہیا کرنا اپنے بچوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں ہے، جس وجہ سے آئے روز جو قرضوں پر قرضے، جتنے قرضے پچھلی سابقہ حکومتوں نے 70 سال میں لیے ہیں، اس سے بڑھ کر انہوں نے 3 سال میں قرضے لے لیے ہیں۔ آج کی احتجاجی ریلی جو ہے یہ کرپٹ حکومت اور نااہل حکومت کے خلاف ہے، اور ہم نے اب یہ دل سے طے کر لیا ہے کہ جب تک اس کرپٹ حکومت نااہل حکومت کو گھر نہیں بھیجتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ریلی میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کارکن اور شہری شریک ہوئے۔ گڑھا چوک سے نکلنے والی احتجاجی ریلی ختم نبوت چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔
मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीडीएम सड़कों पर आ गई। जंग में भी अपोजिशन जमातें मंगल को हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करेंगी। पीडीएम जमातों ने कारकुनान को मुतहरिक करने का काम शुरू कर दिया है। जंग में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इकट्ठ मंगल को होगा। मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम और दीगर जमातें भी शिरकत करेंगी। 26 अक्टूबर बरोज़ मंगल 10 बजे प्रेस क्लब के सामने पीडीएम की तमाम जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फजल रहमान ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान, जमात इस्लामी, प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन, उसके बाद लेबर मूवमेंट, फिर रिक्शा यूनियन और नंबर ऑफ़ दूसरी तंजीमें जैसे जंग डिवीजन बनाओ तहरीक, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। जंग की तारीख़ में इतना बड़ा इंशाअल्लाह एहतजाजी रैली कभी नहीं निकली होगी। और जिस तरीके से आज अवाम बेबस है, परेशान है, अब देखिए ना जी, चोरों की बात करते रियासत में। फैसलाबाद के सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं की बैठक। मीटिंग में लीगी अराकीन समेत टिकट होल्डर्स और अहदेदारान ने शिरकत की। महंगाई के खिलाफ इतवार के रोज एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम अराकीन और मेंबरान शामिल होंगे। वाहद दौर है पाकिस्तान की 72 साल तारीख का कि जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई गरीब लोग जो हैं इससे अफेक्ट हैं या मजदूर परेशान हैं। ये रेडी बांध से लेके, छाबड़ी वाले से लेके, मजदूर से लेके और पाकिस्तान के मिल ऑनर तक तमाम लोग परेशान हैं। और ज़िला कौंसिल से लेकर हमने घंटाघर जाना है और उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी जितनी भी झैली विंग्स हैं, हमारी जितने ख़वातीन विंग्स हैं, लेबर विंग है, लायर विंग है, यूथ विंग है और हमारी MSF है, उलमा विंग है, ये तमाम विंग्स जो हैं ये अल्लाह की फजल करम से ये भी। फैसलाबाद में 24 घंटों में कातिल मच्छर एक और इंसानी जिंदगी निकल गया। 37 साल अजहर अली बतौर कांस्टेबल लाहौर में तैनात था। अजहर अली भट्टी टाउन नूरपुरा का रहायशी और DHU अस्पताल में ज़ेर इलाज था। इसके अलावा 6 अफराद को डेंगू मच्छर ने अपना शिकार कर लिया है। रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 132 तक जा पहुंची है। अब तक 3 मरीज वायरस के सबब जान की बाजी हार चुके हैं। उधर झंग में डेंगू के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए। DHU अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8 हो गई है, जबकि रवां साल अब तक 48 मरीज वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा ना होने पर पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। महकमा सेहत की टीमें 25 अक्टूबर से घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। उधर जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने शोबा ट्रांसपोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं। मोटरवे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए 12 टीम्स काम करेंगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला किया है। जंग समेत सूबा पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए रेड मुहिम चलाई जाएगी। रीच एवरी डोर के नाम से चलाई जाने वाली ये मुहिम 25 अक्टूबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए महकमा सेहत जंग ने 255 अफराद पर मुश्तमिल टीम भी तश्कील दे दी है, जो घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। हुकूमत पंजाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आरजी मुलाजमीन की भर्ती और अखराजात की इजाजत भी दे दी। हेल्थ काउंसिल के फंड से अखराजात किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को मौसर करने के लिए फैसलाबाद इंतजामिया ने शोबा ट्रांसपोर्ट में वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। टीम मोटरवे से उतरने वाली और जाने वाली गाड़ियों में सवार मुसाफिरों की वैक्सीनेशन चेक करेगी। इन टीमों में जिला इंतजामिया, पुलिस, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और मीडिया नुमाइंदगान शामिल हैं। टीमों के जरिए साइयावाला इंटरचेंज, दाखिली, खारजी पॉइंट, डेप्टी वाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज, अमीनपुर बंगला, समुद्री और जड़ावाला इंटरचेंज पर हर किस्म की व्हीकल्स को चेक करके वैक्सीनेशन रिपोर्ट मुरतब हो सकेगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद की मौके पर मोबाइल वैक्सीनेशन टीम के जरिए वैक्सीन लगाई जाएगी। बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ मजदूर मुतहरिक हो गए। फैसलाबाद में ताजर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का बोले, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। टैक्सीज और महंगाई की हालिया सूरत हाल के खिलाफ ताजर इंडस्ट्री मजदूर इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताजर रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने कहा कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी चैलेंज बन चुका है। हमारा ताल्लुक सिर्फ आवाम के साथ, ताजरों के साथ, मजदूरों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। हमारे अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ जमातों के बंदे भी बैठे हुए हैं, मगर जब इस प्लेटफॉर्म पे आना है वो अपनी एफिलेशन जो एक साइड पर रख देनी है हमने, और जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए
बेहतर होगा, मजदूरों के लिए बेहतर होगा और बाकी ताजरों के लिए, इंडस्ट्रीज के बेहतर होगा, वो इक़दाम हमने उठाना है। मजदूरों की नुमाइंदा जमात LQM के सदर बाबा लतीफ़ का कहना था कि मजदूरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ताजरों के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को जिला कौंसिल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस वक्त सूरत हाल गुर्बत में इतना ज़्यादा इजाफा है कि आप रोडों के ऊपर देख लें, एक आधा बंदा मांगने वाला खड़ा होता था, अब 10-10 खड़े होते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। और जितने मैं समझता हूं कि हमारे MNA MPA साहबान हैं, वो सब अच्छा की अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, वो समझ लें कि वो भी खुदा के देनदार होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। हम समझते हैं कि अगर सही काम हो रहा है तो फिर उसको सही कहना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो उसकी निशानदेही जरूर करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइजिंग पावर लूम्स और ताजरों समेत मजदूर रहनुमा शरीक हुए और हुकूमत से बढ़ती महंगाई पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की। कैमरामैन अली हसन के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नया टैक्स लगाने की तैयारियां, शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़ जायदादों से टैक्स वसूली इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए। नए टैक्स गुजारों से सालाना 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का तखमीना लगाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नया टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हाईवे टैक्स के लिए मोटरवेज और शाहराहों पर वाक़ जायदादों का सर्वे और मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के आगाज से हुकूमत ने मोटरवेज और शाहराहों पर मौजूद अमारात पर नया टैक्स लगाया था। आराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम पेशरफ, फर्द और इंतकाल के लिए यूनिवर्सल रसाई देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में कहीं से भी डॉक्यूमेंट का इजरा मुमकिन हो सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, आराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से ये अहम पेशरफ सामने आई है। पंजाब भर में कहीं से भी डॉक्यूमेंट का इजरा अब मुमकिन हो सकेगा। अब फर्द के हसूल के लिए होम टाउन जाने की जरूरत नहीं होगी। शहरी शनाख्ती कार्ड रखवा कर पंजाब भर से रेवेन्यू मामलात की सर्विस हासिल कर सकेंगे। सानेहा जामपुर झंग में पटवारियों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। सरकारी अमूर ठप होने से सालीन खार होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। जामपुर में जाम बहक होने वाले पटवारी से इजहार यकजहती के लिए झंग में हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। अंजुमन पटवारियों जिला झंग के सदर मुजफ्फर अब्बास का कहना था कि जामपुर के पटवारी वसीम अब्बास से मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और अमले ने नारवा सलूक किया। महकमा तालीम ने असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के शेड्यूल को नज़रअंदाज कर दिया। असातिज़ा को जुलाई से हर तीसरे माह तबादलों की सहूलत देने का वादा किया गया था, लेकिन 4 माह बाद भी तबादलों से पाबंदी ना हटाई जा सकी। असातिज़ा के तबादलों के लिए महकमा तालीम की तरफ से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली शुरू ना हो सकी। शेड्यूल के मुताबिक जुलाई में ओपन तबादले हुए, जबकि 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल असातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तें तलब नहीं की जा सकी, जिसके बायस टीचर्स करीब के स्कूलों में ट्रांसफर करने से महरूम हैं। फैसलाबाद इंतजामिया की संगीन गफलत, गटरों के ढक्कन चोरी होने का सिलसिला थम न सका। शेखुपुरा रोड, DC ऑफिस रोड और मुल्हिका इलाकों से ढक्कन चोरी होने लगे। कई एक टूट फूट का शिकार हैं। खुले गटर और मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। शहर की अहम शाहराहों से गटरों के ढक्कन चोरी और टूट फूट का शिकार हैं। साहिल अस्पताल और क्रिसेंट स्कूल शेखुपुरा रोड से गटरों के ढक्कन भी गायब हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ये इंतहाई खतरनाक है। आए दिन कोई ना कोई इंसान गिरता है यहाँ पे, क्योंकि आप इस रोड पे चले जाएं और जाके देखें कितने ढक्कन चोरी हुए हुए हैं। इंतजामिया को इतनी कंप्लेन करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे नशा करके सोई हुई है। नरवाला रोड से भी मैन होल के ढक्कन गायब। माल रोड, जेल रोड, संसिंग रोड से भी ढक्कन चोरी हो गए। निशाताबाद, तारकाबाद, मिल्लत रोड और मिल्लत टाउन से भी मैन होल के ढक्कन गायब हैं, जबकि DC ऑफिस रोड, जड़ामाला रोड और सत्याना रोड पर भी ढक्कन नहीं लग सके। जरूरत इस अमर की है कि अहम शाहराहों के ऊपर गायब गटरों के ढक्कन को फौरी तौर पर लगाया जाए, ताकि हादसा से बचा जा सके और इंसानी जिंदगी भी महफूज रह सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन चिन्योटी रोड के हालत ना बदल सकी। चिन्योट में फर्नीचर बनाने के घर चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो से महरूम। सड़क की खस्ता हाली के बायस ताजिर और अवाम दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए वकार घुमन की ये रिपोर्ट। चिन्योट में जिला इंतजामिया शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा दिखाई देती है। फर्नीचर बनाने के गढ़ चिन्योटी रोड पर तवज्जो न होने से रहना और गुजरना मुहाल हो गया। सड़क पर पड़ने वाले गड़े खौफ की इलामत बन गए हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात में इजाफे का भी बायस बन रहे हैं। बड़े अरसे से ये रोड खराब है। इस रोड की हालत आप देख रहे हैं, बड़ी अरसे से ये रोड खराब है। जब यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ 2-2 फुट का पानी खड़ा हो जाता है। कारोबार करने से भी हम कासिर हैं, बिल्कुल यहाँ कारोबार भी हम नहीं कर सकते। चिन्योटी रोड की खस्ता हाली से ताजिर और रिहायशी दोनों ही परेशान हैं। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों का कहना है कि रोड की मुरम्मत न होने से फर्नीचर साजी की सनत तबाह हो रही है। आते हैं तो मुश्किल होती है उनको, तो इसके लिए अपील यही है हुकूमत से, अगर ये कर सकती है तो करे। ये 2-3 फुट इधर पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये हुकूमत से अपील है कि इसका कोई सोचें। शहरियों का कहना है कि बड़ी शाहराहों समेत चिन्योटी रोड की हालत जार को भी बेहतर किया जाए ताकि फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टैक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर। इंतजामिया का एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम कदम। चटियाना में नया रेस्क्यू स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल गई। नई इमारत की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। एमरजेंसी की सूरत से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। चटियाना में नया रेस्क्यू स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। नई इमारत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। मंसूबा 9 माह में पाया तकमील तक पहुंचकर आवाम को सहूलियात मुहैया करेगा। MPA सईद अहमद सईदी कहते हैं कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब से खसूसी तौर पर दरखास्त दी गई थी। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू का जो मंसूबा अप्रूव्ड हो चुका है, जिस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पहले भी बात की है, तकरीबन 17-18 के करीब हमारे मंसूबा जात हैं जो हैवी अमाउंट के हैं, जो कि तहसील टोबा टैक्सिंग PP 121 में होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 2 और चेक पोस्ट, जिसमें 1122 की चेक पोस्ट 388 का अब है, और रजाना सेंटर के लिए भी अप्रूव हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर का कहना है कि मंसूबे से लोगों को रेस्क्यू की बेहतर सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। चटियाना टोबा शहर से 18 किलोमीटर दूर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में देर लगती है। टोबा टैक्सिंग से जो हमारा जिस चटियाना थाने की आप बात कर रहे हैं रेस्क्यू स्टेशन की, वो हमारा यहाँ से डिस्टेंस कोई 18 किलोमीटर का फासला है, जो कि एक सिंगल रोड है रेलवे लाइन के साथ साथ, जिस पे हमारी जो एमरजेंसी RTS रेशियो तकरीबन 15% थी मंथली। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए ऐसे मंसूबों की टोबा की आवाम के लिए अशद जरूरत करार दे दिया। सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र हुकूमत की जानब से चटियाना मरकज को एक नया रेस्क्यू स्टेशन मुहैया किया गया है। चटियाना मरकज के मुल्हिका 2.5 लाख से जायद आबादी को अब बर वक्त सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस गैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां पुलिस तफ्तीश में मसाइल पैदा करने लगीं। ट्रैफिक पुलिस ने अप्लाइड 4 गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। गुज़श्ता 18 घंटों के दौरान 300 से जायद गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। हादसे के बाद फरार होने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार होने के बायस बच निकले हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात में मुसलसल इजाफे के बाद अप्लाइड 4 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर 300 से जायद अप्लाइड 4 मोटरसाइकिल्स और कारें बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि CTO की जानिब से शहरियों से इस्तदा की गई है कि अपनी गाड़ियों की जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि मुश्किल सूरत हाल से बच सकें। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने तेजाब गर्दी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम रमजान को उम्र कैद 10 लाख रुपए जुर्माना और 1 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म सुनाया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तेजाब गर्दी का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम रमजान को उम्र कैद 10 लाख रुपए जुर्माना और 1 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म सुनाया। अदालत ने मुलजिम रमजान के बेटे यासीन को नाबालिग होने पर शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया, जबकि अदालत ने मुलजिम रमजान की बीवी आमना बीबी को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिमान पर अमजद नामी शहरी पर पैसों के तनाजे पर तेजाब गिराने का इल्जाम था। तेजाब गिरने के सबब अमजद की दोनों बाजू और टांगे झुलस गई थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना खुरड़ियावाला पुलिस ने दिसंबर 2020 में मुकदमा दर्ज किया था।
आरपीओ फैसलाबाद इमरान महबूब का दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। रीजन भर से खातीन समेत साइलिन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर खुली कचहरी पहुंच गई। आरपीओ ने शिकायत के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। आरपीओ का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा काम है करना है, और फिर जिस तरह आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट रोज़ाना की बेसिस पे हो रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लोगों की तादाद भी बढ़ना शुरू होगी, बिकॉज लोगों को मैसेज जाना शुरू हो गया। और हमारा वही इशू जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपने देखा होगा कि 2 से 3 केसेस ऐसे हैं जिससे मैंने कहा पहले का फॉलोअप हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने की कोशिश करें। कोशिश है कि लोगों को जितना रिलीफ फराहम किया जा सके वो करें। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम हिमानी, अ नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। सिर्फ डायमंड सुप्रीम फोम दे 12 साल की गारंटी के साथ बेहतरीन कस्टमर केयर और सर्विस। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। जब चाहत भरी आंच पर पानी उबलने लगे, एक एक पत्ती झूमते हुए घुलने लगे, असली सुनहरा रंग उभरने लगे, तो पिंगड़क जायका कब से दिल में समा जाए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट। डायमंड सुप्रीम फोम की नई वेबसाइट और कस्टमर केयर हेल्पलाइन अब आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल है। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम। डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एबमा अहदेदारान के लिए तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। अहदेदारों को अमेज़ॉन पर आलमी सतह पर कारोबार के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद शेख और चेयरमैन PHA काशिफ ज़िया ने भी शिरकत की। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एबमा अहदेदारान के लिए तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महबूब, चेयरमैन PHA काशिफ ज़िया, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज कामरान और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान ने भी शिरकत की। बल्दियाती इदारों की बहाली। टोबा में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद ने चार्ज संभाल लिया। MPA सईद अहमद सईदी समेत अफसरान ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। बल्दियाती अदारों की बहाली के बाद ओहदेदारान की जानिब से चार्ज संभालने का सिलसिला जारी है। टोबा में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद ने चार्ज संभाल लिया। MPA सईद अहमद सईदी, काउंसलर्स और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने मियां शहजाद को खुशामदीद कहा। मियां शहजाद का कहना था कि सीवरेज, नालियों की सफाई और जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सियासी क़यादत से मिलकर शहर की बेहतरी के लिए जामिया मंसूबा लेकर आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें मौका दिया कि हम आवाम की एक बार फिर खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह हमसे जो बेहतर हो सका, हम शहर के मसाइल के लिए जो भी हमसे हो सका, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर काउंसलर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक बार फिर आवाम की खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बल्दियाती अदारे बहाल किए हैं। हम मिलजुल कर चेयरमैन शहजाद साहब की क़यादत में अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे। शहर के जो भी मसाइल हैं उनको बखूबी सर अंजाम देंगे। हम हुकूमत का और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वसाकत से ये बहाली हुई है। इंशाअल्लाह पहले भी खिदमत कर रहे थे, इंशाअल्लाह आप बहाल हो गए हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद अख्तियारात भी आ गए हैं और इंशाअल्लाह आवाम की मज़ीद खिदमत करेंगे। म्यूनसिपल कमेटी के शुरा का कहना था कि आने वाले दिनों में शहर की बेहतरी के लोगों को बहुत से असरात नजर आएंगे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सी। जंग में पोलियो वर्कर्स के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए और आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जंग में पोलियो के खात्मे के आलमी दिन की मुनासबत से DC ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास ने पोलियो मुहिम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के स्टाफ के हमरा पोलियो आगाही वॉक में भी शिरकत की। आज का दिन हम 24 अक्टूबर के हवाले से वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है ताकि अवाम में इस बीमारी के खिलाफ एक अवेयरनेस पैदा की जाए। UN लेवल पर ये मनाई जाती है, आज हम उसको मना रहे हैं। साथ साथ हमने अपने जो डेडिकेटेड पोलियो वर्कर्स थे उनको एप्रिसिएशन के तौर पर लेटर्स भी तकसीम किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो के खात्मे का आलमी दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। पोलियो की आइंदा मुहिम दिसंबर में शुरू होगी। तमाम बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हेल्थ की टीम्स हैं, जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वैसे तो ये सारे अवाम की सेहत के साथ जुड़े हुए हैं। पोलियो कैंपेन ऐसी कैंपेन है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ जुड़ी हुई है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखिए जहांगीर अशरफी इस रिपोर्ट में। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। तलबा ने सीरतुल नबी बारे मुकाले भी पेश किए। एक शख्स आपसे गुफ्तगू के दौरान में कांप रहा था। फरमाया, मुझसे क्यों डरते हो? मैं कोई बादशाह नहीं, आप तमाम लोगों से ज्यादा हकीम दाना, शुजा, मेहरबान और आदिल थे। आपसे जो कुछ मांगा जाता अता फरमाते, जमीन पर बैठकर खाना खाते और जमीन पर ही सोते, अपने जूते और कपड़े को खुद पैबंद लगाते, बकरी का दूध खुद दोहते, आज़ाद और गुलाम में से जो भी आपकी दावत करता कबूल फरमाते। साबिक चेयरमैन बोर्ड व मजहबी स्कॉलर डॉक्टर एजाज फारूक अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इस्लाम ने औरत को मुआशरे में सबसे आला मकाम अता किया। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो वो उस वक्त हमें इल्म होना चाहिए। चेयरमैन एफसीसी स्टैंडिंग कमेटी फॉर एडवर्टाइजिंग ख्वाजा नवीद के बेटे शहरोज नवीद की दावत वलीमा मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन एफसीसी स्टैंडिंग कमेटी ख्वाजा नवीद के बेटे शहरोज की दावत वलीमा का एहतमाम किनार रोड पर वाक़ मार्की में किया गया। तकरीब वलीमा में सूबाई वज़ीर बराए कॉलोनीज़ एंड सकाफत ख्याल कासरो, सूबाई वज़ीर बराए बैतुल माल अजमल चीमा, उम्मीदवार बराए लॉर्ड मेयर राना जाहिद महबूब, MS चिल्ड्रन हस्पताल हबीब ने भी शिरकत की। शुरका ने नौबहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया।